Hello students. So students, as you know that we are completing chapter number 11 conic sections, okay? Student, in the last part of the video, we had discussed the ellipse, okay? We had discussed the standard equation of an ellipse which is equal to x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, okay? After this, we have studied few terms related to the ellipse, okay? Like focus of the ellipse, directrix of the ellipse, latus rectum of the ellipse, and so on, okay? So till now we have discussed all the concepts regarding ellipse, okay? So in this video we will solve questions related to ellipse, okay? So see, I am going to start exercise 11.3 and the exercise 11.3 is based upon ellipse only, okay? So whatever questions are given in this exercise, it is given on the concept of ellipse, okay? So let me start the questions. So see student, I am discussing 11.3 from NCERT book, okay? So see, in exercise 11.3 it is given that in each of the exercises 1 to 9 find the coordinates of foci, the vertices, the length of major axis, the length of minor axis, the eccentricity and the latus rectum of the ellipse, okay? So student, in exercise 11.3 from question number 1 to question number 9 there are the equation of ellipse are given, okay? And with the help of the equation of ellipse you have to find the terms related to the ellipse, like its focus, its directrix, its latus rectum, its major axis, its minor axis, as well as its eccentricity, okay? So I hope that all of you having your math NCERT book. So I am going to start with question number 1, okay? Question number 1, and in question number 1 student, one equation of ellipse is given, that is x square upon 36 plus y square upon 16 is equal to 1. It is given, okay? So equation of the ellipse is given and we have to find out the foci, the vertices, the length of major axis, the length of minor axis, eccentricity and the length of latus rectum. So let us write all the things which we need to calculate. So see, first case, we have to find foci, means focus, then we have to find vertices, okay, vertices, then length of major axis, okay, in fourth length of minor axis, ठीक है, ये सारी चीजें हमें निकालनी है. फिफ्थ इसेंट्रिसिटी, ठीक है, एंड द लास्ट लैटस रेक्टम, ठीक है, लैटस रेक्टम. तो ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन की मदद से फाइंड करनी है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में ये सब कुछ फाइंड करना है, ठीक है. So whatever the question is given, first you can compare this equation with the standard equation of an ellipse. So if we will compare it, students, अगर आप इस equation को किससे compare करें, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, ये standard equation होता है ellipse का. तो जो इक्वेशन दिया अगर मैं उससे इसको कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं यहां से जो a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 36 एंड जो b स्क्वायर की वैल्यू आ रही है दैट इज 16, ठीक है. तो यहां से a स्क्वायर की वैल्यू 36, b स्क्वायर की वैल्यू 16 और देख के ही पता चल रहा है कि अगर मैं a स्क्वायर निकालूं स्टूडेंट तो इसमें a स्क्वायर जो है स्टूडेंट a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर दिख रहा होगा आपको. तो यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि a विल बी ग्रेटर देन b फॉर दिस केस, ठीक है. a जो होगा वो b से क्या होगा, बड़ा. आप खुद सोच सकते हो कि a का स्क्वायर 36 है और b का स्क्वायर 16 है, तो इसका मतलब a जो होगा वो b से क्या होगा, बड़ा, ठीक है. तो इसका मतलब ये हमारा पहला वाला इक्वेशन है, पहला वाला केस जब a किससे बड़ा होता था, b से, ठीक है. तो पहली चीज क्या फाइंड करनी है, फोसाई, ठीक है. फोसाई फाइंड करने के लिए हमें इसेंट्रिसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है. तो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था स्टूडेंट, when the equation of the ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 and where a is greater than b, so in that case
द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस अलॉन्ग विथ वाई एक्सिस, ठीक है। एंड द फोकस ऑफ द इलिप्स विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस, जो भी मेजर एक्सिस होती है इलिप्स की उसी पर उसका फोकस होता है, ठीक है। तो यहां से हमें श्योर है कि ए इज ग्रेटर देन बी। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा इलिप्स जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, पहला वाला केस होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा इलिप्स होगा हमारा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब फोकस भी इसके एक्स एक्सिस पे ही आएगा। मान लो ये फोकस S1 है और ये S2 है, जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता होता है, दैट इज प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। तो उसके लिए पहले मुझे ई निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि जब ए इज ग्रेटर देन बी, तो उस केस में क्या एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो बी स्क्वायर होता है दैट इज ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है स्टूडेंट, ठीक है। ये मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था जब मैंने डिराइव करवाया था, तो मैंने आपको ये रिजल्ट दिखाया था, जहां पर ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जो ए होता है, यहां पर जो ए होता है दैट इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब यहां पे ए स्क्वायर पता है आपको, बी स्क्वायर पता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बी स्क्वायर इज 16, ए स्क्वायर इज 36, इट इज 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, या ई स्क्वायर की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें तो 1 माइनस 16 अपॉन 36 इट विल कम, ठीक है। तो ई की जो वैल्यू, ई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी यहां से वो आ जाएगी 36 माइनस 16 बाई 36। सो ई विल बी इक्वल, ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 बाई 36, ठीक है, 20 बाई 36। नाउ ई स्क्वायर की वैल्यू 20 बाई 36 है, और हमने इलिप्स के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ई जो होता है, इसेंट्रिसिटी जो होती है इलिप्स की, वो 0 to 1 के बीच में लाई करती है। वी ऑल नो दैट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स लाई बिटवीन 0 to 1। ये डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं। इसका मतलब पहले ई स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिखा 20 बाई 36, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं अगर, तो 5 4 एंड 9 4, ठीक है। तो ई की जो वैल्यू आनी चाहिए दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 5 बाई 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5 अपॉन 3, ठीक है। अंडर रूट 5 बाई 3 विल बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो हमने इलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकाल लिया, ठीक है। अंडर रूट 5 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दो। इस पूरे की वैल्यू 1 से कम ही होगी, आप अगर सॉल्व करोगे तो 1 से कम ही आएगी, ठीक है। सो बाय दैट वे वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, इसेंट्रिसिटी। सो नाउ फर्स्ट केस वी हैव टू फाइंड द फोसाई, ठीक है। तो फोसाई, बिकॉज फोसाई मुझे फाइंड करना है, फोसाई, ठीक है। फोसाई इज द प्लूरल ऑफ फोकस, ठीक है। तो हमको ही पता है कि फोसाई दो होते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक है, प्लस माइनस ए कॉमा 0। अगर प्लस वाले लोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, और माइनस वाले लोगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो इलिप्स की जो फोसाई होती है स्टूडेंट, बिकॉज इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो हमारा किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो उसकी जो फोसाई होगी दैट विल बी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है। और ए जो होता है, ए देखो, ए जो होता है दैट इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अगर मैं यहां पे एक इलिप्स ड्रॉ करूं, यहां पे मैं एक इलिप्स बनाता हूं, तो ये डिस्टेंस ए होती है और ये डिस्टेंस भी ए होती है, इन दोनों को ही ऐड करते हैं तो हमको लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस मिल जाता है, ठीक है। तो ए जो हमारा हुआ दैट इज द वैल्यू ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ कितनी मिली थी, 36, तो ए की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। ए की वैल्यू 6 आएगी अगर, तो यहां पुट कर देते हैं प्लस माइनस ए की वैल्यू 6 एंड बी की वैल्यू रूट 5 अपॉन 3 कॉमा 0। तो जो फोसाई होगा दैट विल बी प्लस माइनस 2 रूट 5 कॉमा 0, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज फोसाई ऑफ द इलिप्स। फोसाई क्यों लिखा है, क्योंकि इलिप्स में दो फोकस होते हैं, तो दोनों को ही मैंने साथ में लिखा है। एक बार प्लस वाला लोगे तो प्लस 2 रूट 5 कॉमा 0, एक बार माइनस वाला लोगे तो माइनस 2 रूट 5 कॉमा 0। और बिकॉज इस इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो एक्स के अलॉन्ग है, इसीलिए इसका एक कोऑर्डिनेट क्या आया है, 0, ठीक है। सो बाय दैट वे वी हैव फाइंड आउट द फोसाई ऑफ द इलिप्स, ठीक है। ओके, इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब देखिए स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट। सेकेंड में हमें वर्टेक्स फाइंड करना है, वर्टिसेस फाइंड करना है, ठीक है। इलिप्स की जो वर्टिसेस होती है स्टूडेंट वो क्या होती है,
उसकी मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट, इलिप्स के जो वर्टेक्स होते हैं उसकी मेजर एक्सिस क्या होते हैं, एंड पॉइंट, और मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, यहाँ पे a,0 होता है और यहाँ पे -a,0 होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो वर्टिसेस आने चाहिए वो आने चाहिए +-a,0। वर्टिसेस मतलब कि उस इलिप्स की मेजर एक्सिस को जहां पे कट करती है वही उससे क्या होते हैं, वर्टेक्स। ये वाली लेंथ होती है माइनस, ये ए होती है, ये भी ए होती है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -a,0, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो a,0, क्योंकि दोनों ही इसके क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स हम लोग वही काउंट करते हैं जो मेजर एक्सिस पे होते हैं, ठीक है। तो ये एक वर्टेक्स हुआ, ये दूसरा वर्टेक्स हुआ, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो आएगा +-a,0। अब a की वैल्यू हमने ऑलरेडी बताई है आपको, a की वैल्यू जो यहाँ पे है आप खुद देख सकते हो 6 है, तो जो उसके वर्टिसेस हुए दैट विल बी +-6,0, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। लेट मी चेक द आंसर ऑल्सो। Yes, it is correct. Now, length of the major axis. Length of the major axis, क्योंकि हमको लेंथ निकालनी है तो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही किया है कि a is greater than b, इसका मतलब लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस विल बी 2a, ठीक है। ये पहला वाला केस है इलिप्स का। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विल बी 2a, क्योंकि यहाँ पे a b से बड़ा है इसलिए लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस विल बी 2a। a की वैल्यू 6 है, सो इट विल बी 2 into 6 दैट इज 12। तो थर्ड पार्ट कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, सो माइनर एक्सिस विल बी 2b, तो b की वैल्यू है 4, तो 2 into 4 दैट विल बी इक्वल टू 8, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज इसेंट्रिसिटी, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड स्टूडेंट। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब हमें लैटिस रेक्टम निकालना है, दैट इज 6 पार्ट लैटिस रेक्टम, ठीक है। बिकॉज इन दिस के a इज ग्रेटर देन b, सो लैटिस रेक्टम विल बी इक्वल टू 2b² a, ठीक है, 2b² a। लैटिस रेक्टम क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट जो कि फोकस से पास करती है और इलिप्स की मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो b² की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी नो, दैट इज 16, a की वैल्यू है 6, सो लेट्स पुट द वैल्यू 2 into 16/6, so it will come 16/3, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम इज 16/3, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ऑल द वैल्यूज विच इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट, सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व सेम थिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मेजर एक्सिस होगी, कौन सी माइनर एक्सिस होगी। जब b² की वैल्यू a² से बड़ी होती है तो उस केस में मेजर एक्सिस 2b होता है और माइनर एक्सिस 2a होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं उसमें बता दे रहा हूं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट यू नोट डाउन दिस थिंग, देन वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन विच इज बेस्ड अपॉन when the major axis is changed, okay. So question number 7 in which the major axis is changed, so let's discuss question number 7 after this, okay. So I am going to erase it, ये portion same रहेगा, so let me erase these parts। Means if you have understood all the concept related to the ellipse, then questions are very easy, okay. All the questions of conic sections are very easy if you remember all the concepts, okay. अगर आपने डेरिवेशन समझा है तो क्वेश्चन तो आपको करने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप डेरिवेशन करोगे तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराता हूं जिसमें मेजर एक्सिस कुछ और होगी, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 इज 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, ये है। और इस क्वेश्चन में भी ये सारी चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ चलिए अब पहले ये इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, लेट्स सॉल्व सोल्यूशन। सोल्यूशन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन इज गिवन दैट 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट का मतलब x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर आना चाहिए, y स्क्वायर के नीचे b स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, और राइट हैंड साइड में 1 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 144 से डिवाइड कर देंगे। सो इट विल कम 36x स्क्वायर बाय 144 प्लस 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 144 इज इक्वल टू 144 बाय 144। ठीक है, क्योंकि पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। तो आप देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस ये आ जाएगा y स्क्वायर बाई 144। ठीक है, और ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा। सॉरी, ये 144 नहीं होगा, ये 36 होगा। 36। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो डायरेक्टली इसको कंपेयर कर दिए। इस वाले में स्टैंडर्ड फॉर्म में था नहीं, इसको पहले हमने कन्वर्ट किया है फिर इससे कंपेयर किया है। तो अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, 4 के बराबर, एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 36 के बराबर। तो अब यहां से आप खुद देख सकते हो कि बिकॉज बी स्क्वायर की वैल्यू क्या, यहाँ पे जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो ए स्क्वायर से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि जो बी की वैल्यू होगी वो ए से बड़ी होगी। इसका मतलब ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे आ रहा है। इसका मतलब जो हमें इलिप्स मिलेगा उसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो किसके अलाउंग होगी, वाई एक्सिस के अलाउंग होगी। ठीक है, वाई एक्सिस के अलाउंग इसकी मेजर एक्सिस होगी। तो ये दूसरा वाला केस है जो इसके पिछले वाले पार्ट में मैंने बताया था आपको। सेम चीज है ये, बस इसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस के अलाउंग होगी। सो वी विल राइट मेजर एक्सिस विल बी along y एक्सिस। तो along y एक्सिस होगी स्टूडेंट। तो यहां से हम क्या एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो b की वैल्यू होगी वो ±6 होगी और a की वैल्यू जो होगी वो ±2 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा मेजर एक्सिस 2b होगा और माइनर एक्सिस 2a होगा। ठीक है, यहां पे ये हमारा b होता है, ये पोर्शन हमारा b होता है और ये पोर्शन हमारा a होता है। ठीक है, ओके एंड ठीक है, अब सारी चीजें हो गई। अब ध्यान दो स्टूडेंट, जब हम इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, उसका फोसाई। फोसाई यानी कि अब उसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलाउंग है, इसका मतलब जो फोकस होगा वो वाई एक्सिस पर ही होगा। ठीक है, मैंने बताया था अगर जहां पर भी मेजर एक्सिस होती है उसी पर ही फोकस होता है इलिप्स का, तो फोकस इसका वाई एक्सिस पे आएगा। और अगर किसी इलिप्स का फोकस वाई एक्सिस पे होता है तो उसकी जो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होता है 0, ±BE। तो उसके लिए पहले हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी होगी। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे। कौन सा होगा इस केस में, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 - E स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आप लिख देना बिकॉज b इज ग्रेटर देन a। इसके पहले वाले क्वेश्चन में a इज ग्रेटर देन b था, a इज ग्रेटर देन b था, तो वहां पे यहां पे b था और यहां पे a था। ठीक है, मतलब कि जो बड़ा होता है वो e वाले साइड होता है। ठीक है, उस वाले केस में a बड़ा था तो a स्क्वायर e के साइड था, ऐसे ही इस वाले केस में b बड़ा है तो b स्क्वायर इसके साइड है। ठीक है, बस आपको a स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी पता है, a स्क्वायर की वैल्यू है 4, b स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 1 - E स्क्वायर। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व। यहां से 4/36 इज इक्वल टू 1 - E स्क्वायर आएगा, या यहां से 1/9 इज इक्वल टू 1 - E स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब मैं इसको, ठीक है, अब यहां से हम सॉल्व करते हैं। तो 1 - E स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/9। ठीक है,
तो यहां से जो ई स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/9, ठीक है। सो ई स्क्वायर विल बी इफेक्टिवली इक्वल टू 8/9, ठीक है। तो ई की जब अंडर रूट निकालोगे आप तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए अंडर रूट 8/9। सो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 2√2/3, 2√2/3। क्यों एक वैल्यू, इसलिए ई स्क्वायर की वैल्यू 8/9 है, तो ई की दो वैल्यू मिलनी चाहिए प्लस और माइनस में। लेकिन हमको पता है कि एलिप्स की सेंट्रिसिटी 0 to 1 के बीच में लाई करती है, इसीलिए इसकी सेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि ई की वैल्यू 2√2/3। अब बिकॉज इस इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वाई के अलॉन्ग है, तो फोकस भी वाई एक्सिस पे ही आएगा। तो हमें पहले केस में क्या फाइंड करना है, फोकस। वेट अ मिनट स्टूडेंट, आई थिंक इन द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द सेंटर ऑल्सो। वेट अ मिनट, नहीं सेंटर तो इसका 0 ही होगा क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो सेंटर 0 ही होगा, ठीक है। तो पहला हमें फोकस ही फाइंड करना है, फोसाई। तो इस केस में जो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, क्या होता है 0, प्लस माइनस BE, ठीक है, प्लस माइनस BE। तो B की जो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता ही है, B की वैल्यू प्लस माइनस 6 था, तो 0, B की वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी 6, और E की वैल्यू 2√2/3। तो जब सॉल्व करोगे आप तो यहां से आएगा 0, अब ध्यान देना यहां पे प्लस माइनस पहले से ही पड़ा हुआ है, इसलिए आप बी की पॉजिटिव वैल्यू पुट करना, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस यही शो करता है कि एक ऊपर के डायरेक्शन में होगा और एक नीचे के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहां पर बी का साइन मत पुट करने लगना, आप केवल बी की वैल्यू पुट करना। बी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे बी की जो हम जनरल पॉजिटिव वैल्यू होगी वो 6 होगी, तो केवल 6 पुट करना, ना कि प्लस माइनस 6, ठीक है। उससे भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे केवल वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी दे दिया है, तो फिर से आपको प्लस माइनस पुट करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4√2, ठीक है। तो जब फोसाई के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे स्टूडेंट्स, दैट विल बी प्लस माइनस 4√2, इट इज करेक्ट। चलिए अब दूसरा पार्ट क्या है हमारा, वर्टेक्स, वर्टिसेस, ठीक है। वर्टिसेस मैंने खुद बोला है कि जहां पर भी मेजर एक्सिस अपनी जहां पर भी इलिप्स अपनी मेजर एक्सिस को कट करता है वही उसकी क्या होती है, वर्टिसेस, ठीक है। जहां पर भी इलिप्स अपनी मेजर एक्सिस को कट करता है वही क्या होती है, इलिप्स की वर्टिसेस। मतलब कि ऊपर होता है 0, B और नीचे होता है 0, -B। तो अगर इन दोनों को साथ में लिखा जाए तो वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0, प्लस माइनस B, ठीक है। तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट, यहां से आना चाहिए 0, प्लस माइनस 6, सॉरी प्लस माइनस 6, करेक्ट। ठीक है, आई होप इसको जहां पे भी कट करता है वो उससे क्या कहलाते हैं, वर्टिसेस, ठीक है। वर्टिसेस ये वाला मत बोल लीजिएगा क्योंकि ये तो उसकी माइनर एक्सिस है। मैंने बोला है इलिप्स अपनी मेजर एक्सिस को जहां कट करता है वही उसके वर्टिस कहलाते हैं। तो दो वर्टिस होंगे इलिप्स में, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, दोनों का कोऑर्डिनेट साथ में लिखोगे तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस B, और जब वैल्यू पुट कर दोगे तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, प्लस माइनस 6, ठीक है। नाउ इसको मैं इरेज कर देता हूं, आई होप आपने ये चीज समझ ली हो। नाउ स्टूडेंट, इन द थर्ड केस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। सो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस ना, फोर्थ पार्ट, इन थर्ड पार्ट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस यहां पे क्या होगी, क्योंकि मेजर एक्सिस y के अलॉन्ग है, तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस विल बी ट्वाइस ऑफ b, एंड b की वैल्यू 6 है, तो 2 × 6 दैट इज 12। याद रखना लेंथ पूछा गया है, आप यहां पे प्लस माइनस का साइन मत पुट करने लगना, क्योंकि लेंथ हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट विल बी 2a, और यहां पे क्या होगा 2 × 4, 2 × 2, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू 4 थी तो a की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 × 2 दैट इज 4, ठीक है। उसके बाद इसेंट्रिसिटी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, E इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी। तो फिफ्थ पार्ट का जो आंसर है इसेंट्रिसिटी वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू
2√2/3, ठीक है. एंड इन द लास्ट पार्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू, क्या होता है इस केस में, जब a b से बड़ा होता था तो उस केस में 2b² होता है, ठीक है. तो अगर यहां पर b a से बड़ा है तो यहां पे क्या हो जाएगा 2a²b. प्रीवियस क्लास में मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, ठीक है. क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पे मैंने यहां लिखा है कि b इज ग्रेटर देन a. जब a b से बड़ा होता है उस केस में b² ऊपर आता है, और जब b a से बड़ा होता है उस केस में a² ऊपर आता है. तो 2 × 4/6 कैंसिल करते हैं तो इट विल बी 4/3, ठीक है. ठीक है. सो बाय दैट वे स्टूडेंट्स, इट इज द क्वेश्चन नंबर 7. ओके, यहां मैंने चेंज नहीं किया था. इट इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड वी हैड सॉल्व ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है. तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, up to question number 9 you can solve all the questions. Okay, you can solve all the questions, ठीक है. So please note down it. After that we will discuss from question number 10 to question number 20. Okay, so please note down it. Now students, from question number 1 to question number 9 we have discussed how to do the questions. Okay, now from question number 10 to question number 20, what is given? See, in each of the following exercises from question number 10 to 20, find the equation of the ellipse that satisfies the given condition. Means from question number 10 to 20 there are some conditions are given in the question, and with the help of that condition you have to write the equation of the ellipse. Okay, so let's discuss question number 10. मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक आपको इलिप्स का इक्वेशन लिखना है, और उसको लिखने के लिए कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, ठीक है. तो वो क्या कंडीशंस दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि वर्टिसेस है, वर्टिसेस कितने हैं, ±5,0, ठीक है. एंड फोसाई दिया हुआ है, फोसाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई इज गिवन, दैट इज ±4,0, ठीक है. So these two hints are given to write the equation of the ellipse. तो आप खुद देखो वर्टिसेस, मैंने अभी बताया इलिप्स का वर्टिसेस कहां होता है, जहां पर इलिप्स अपनी मेजर एक्सिस को कट करता है. और अगर इलिप्स अपनी मेजर एक्सिस को कट करेगा, या तो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई एक्सिस को, तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मेजर एक्सिस कहां पर होगी. तो देखो जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं ये ±5,0, मतलब कि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है. इसका मतलब उस इलिप्स की जो मेजर एक्सिस होगी वो किसके अलोंग होगी, वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, क्योंकि वहां पे जो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमने देखा है वो उसमें वाई जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, ठीक है. तो इससे भी एक हिंट मिल गया. दूसरा हिंट कि जो वो फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं दैट इज ±4,0, और फोकस वहीं पे लाई करता है जहां पे उसकी मेजर एक्सिस होती है. मतलब अगर मेजर एक्सिस एक्स पर है तो फोकस भी एक्स पर लाई करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर. तो देखो फोकस के जो कोऑर्डिनेट है उसमें वाई 0 है, और किस एक्सिस पे वाई 0 होता है, एक्स एक्सिस पर. इसका मतलब जो हमारा इलिप्स होगा उसकी जो मेजर एक्सिस होगी स्टूडेंट वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी. तभी तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने आए हैं, ±5,0, मतलब कि -5,0 यहां पर होगा और 5,0 यहां पर होगा, और फोकस दिया हुआ है दैट इज -4,0 यहां पर होगा और 4,0 यहां पर होगा, ठीक है. तो मतलब कि इतना तो श्योर है कि इसकी जो इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है दैट विल बी अलोंग x axis. So we will write, so the major axis of the ellipse along x axis. जो क्वेश्चन में हिंट दिया था उससे मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि मेजर एक्सिस x एक्सिस पे ही होगी, ठीक है. इसका मतलब कि हमें a की वैल्यू पता चल गई स्टूडेंट. हमें पता है कि अगर मेजर एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस जो x एक्सिस के अलोंग होती है तो उसकी जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होती है उसकी, वो होती हैं ±a,0, और इसी की वैल्यू दी हुई है, इसी की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट, ठीक है. इसका ये मतलब हुआ
कि अगर हम इसको इस वर्टिसेस से कंपेयर करें तो जो ए की वैल्यू हमें मिलती है, ए की वैल्यू वो मिलती है हमें 5। ए की वैल्यू 5 ही तो मिलेगी। खुद देखो, अगर प्लस माइनस ए कॉमा 0 है तो ए की वैल्यू कितनी मिली, 5। और ए क्या होता है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस होता है 2a, तो ए होगा लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमें। और हमें फोकस क्या होता है, फोकस जो हमारा होता है, जो फोसाई होता है वो होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो अगर फोसाई को फोसाई से कंपेयर किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ए ई की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 4। यही ना होगा, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के अलावा मेजर एक्सिस होगी तो उसकी जो फोसाई उसका कोऑर्डिनेट होता है वो होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। कंपेयर करें अगर तो ए इक्वल टू 4, ठीक है। अब ध्यान दो, हमें किसी भी एलिप्स का इक्वेशन लिखने के लिए अगर ए और बी की वैल्यू पता चल जाए तो हम आराम से उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें ए की तो पता है, हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड ए स्क्वायर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ठीक है। और स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब a इज ग्रेटर देन b तो जो b स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, ठीक है। ये यहां से आप डायरेक्टली अगर e की वैल्यू निकालना चाहते हो, अगर आप यहां से डायरेक्टली e की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या आता है, वैल्यू आता है e की वैल्यू या e स्क्वायर की वैल्यू। तो यहां से जो e स्क्वायर की जो वैल्यू आती है स्टूडेंट, सॉल्व करके देखोगे तो आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही आता है, ठीक है। यही वैल्यू आता है। इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है और किसी ना किसी तरह सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ई तो हमको, ई की वैल्यू हमको दिया नहीं है, लेकिन ई की वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ध्यान दो, अगर मैं इस ई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूं, मैं इस ए स्क्वायर की जगह, ई स्क्वायर की जगह ये पुट कर दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये तो 16 है ही ऑलरेडी। तो ये ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल्ड। क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, सो हम यहां पुट कर देते हैं 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 25 माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16। तो बी स्क्वायर की वैल्यू जो आती है वो 25 माइनस 16 आती है, तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 9, ठीक है। अब हमको ए पता है और बी स्क्वायर पता चल गया, ठीक है। बी स्क्वायर पता चल गया तो बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो बी की वैल्यू 3 आएगी, प्लस माइनस 3, बी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ए पता ही है, बी स्क्वायर पता चल गया। सो द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज नोन एज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो होता है, बस ए आपको पता ही है। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर तो आपने ऑलरेडी निकाला ही है, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो जो आंसर आना चाहिए वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। चाहो तो उसको सॉल्व कर लो और अच्छे से, एलसीएम को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 225 एलसीएम आएगा, सो इट विल बी 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। चाहो तो आप अपना आंसर यहां तक भी लिख सकते हो या आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आपको बस ई की वैल्यू से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए, आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ये वाला। और अगर आपको इसेंट्रिसिटी की वैल्यू डायरेक्टली निकालनी है, आपको ये नहीं याद रखना है, आपको ई की वैल्यू डायरेक्टली निकालनी है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, ई की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कब, जब ए बी से बड़ा होता है, और ई की वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होती है जब बी ए से बड़ा होता है, ठीक है। अब खुद देखो, दोनों में एक पैटर्न है, छोटा वाला ऊपर है दोनों ही केस में। देखो यहाँ पे b छोटा है तो b ऊपर है और a नीचे है, यहाँ पे a छोटा है तो a ऊपर है b नीचे है, बाकी 1 तो दोनों में ही कॉमन है, दोनों में रूट का साइन है। तो यहाँ पर a जो था वो b से बड़ा था, हमने ये फॉर्मूला यूज किया, तो b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया। और किसी भी इलिप्स का इक्वेशन लिखने के लिए हमको a और b पता चल जाए तो हम आराम से लिख सकते हैं। सो द इक्वेशन विल बी 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225,
ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। नाउ आई नीड टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13 जो थोड़ा सा अच्छा है, वो भी सिंपल ही है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। फॉर्मूले आपको अगर आप प्रूफ देखे होगे, अगर आपने फॉर्मूले को समझा होगा तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो आप कर ना पाओ इसका, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। सो लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13, देन आई विल डिस्कस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई? बिकॉज previous question is very easy and you can do by seeing these questions, okay. मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि you know the concepts, you know how to recognize which is major axis, which is minor axis, where will be the vertices, where will be the focus, that's all and so on, ठीक है। इतना ही अगर आपको पता हो जाएगा तो आप आराम से कर लोगे। Now, let's discuss question number 13. ठीक है, question number 13 we will discuss because 11, 12 is same. Now, in question number 13, student, what is given? In question number 13, end of major axis, ends of major axis, ends of major axis is plus minus 3 comma 0 and ends of minor axis, ends of minor axis is 0 comma plus minus 2, ठीक है। आप खुद देख रहे हो कि मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3 comma 0 है और माइनर एक्सिस 0 comma plus minus 2 है। इसका मतलब कि जो इलिप्स होगा उसकी मेजर एक्सिस किसके अलावा होगी? एक्स एक्सिस के अलावा, क्योंकि जो मेजर एक्सिस की एंड पॉइंट है वो प्लस माइनस 3 comma 0 है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे y 0 है, इसका मतलब मेजर एक्सिस जो होगा वो हमारा x के डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम ड्रॉ करके देखें, इसको जरा ड्रॉ करके देखें अगर, तो हमारा इलिप्स कुछ ऐसा होगा। ये वाला एंड, ये मेजर एक्सिस का एंड है, ये कितना होगा? माइनस 3 comma 0, दिस विल बी 3 comma 0, this will be 0 comma 2 and this will be 0 comma minus 2, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट, हमको पता है कि ये हमारा सेंटर होता है, ये डिस्टेंस हमारी a होती है, ये भी डिस्टेंस हमारी a होती है, ठीक है। इसका मतलब a की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, a की वैल्यू 3 यहां पे दिख रही होगी आपको डायरेक्टली। अरे 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में, 3 नेगेटिव डायरेक्शन में, a तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो बाय सीइंग द फिगर वी कैन से दैट कि द वैल्यू ऑफ a विल बी 3 एंड हम जानते हैं कि ये वाला पार्ट b होता है और ये भी b होता है। तो इसका मतलब b कितना होगा? b विल बी 2, ठीक है। सो द इक्वेशन विल बी, ये तो बहुत इजी था, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विल बी, so the equation of the ellipse will be क्या होगा? x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. Let's put the value. So x square upon 2 का square plus y square upon x square upon 3 का square, ठीक है। x square upon 3 का square and it is 2 का square is equal to 1. So ये आएगा x square upon 9 plus y square upon 4 equal to 1. So let's solve it. So directly I am writing 4x square plus 9y square is equal to 36. ऐसे हम लेके सॉल्व करोगे तो यही फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप आराम से कर लोगे। Now question number 19 and 20 are similar, so I will tell you the question number 20, ठीक है। Question number 20 I will tell you students. So after solving question number 20 we will finish this exercise because all the questions are similar to these questions, okay. So I hope it is clear to you. So let's discuss question number 20 because question number 20 and question number 19 are similar, ठीक है।
आर वेरी सिमिलर क्वेश्चंस. Now let's write question number 20. Question number 20 is that he measure axis on the x-axis, ठीक है, and ellipse passes through the points 4,3 and 6,2. ठीक है, ये हिंट दिया हुआ है कि हमें जो इलिप्स का इक्वेशन लिखना है उसकी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है और वो कहां से पास कर रही है 4,3 एंड 6,2. ठीक है, इतने हिंट काफी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस. एक फिगर बना देते हैं समझने के लिए. सो फिगर विल बी लाइक दिस. मेजर एक्सिस एक्स के अलोंग है तो कुछ ऐसा होगा और जो इलिप्स है वो 4,3 एंड 6,2 से पास कर रही है. तो सपोज 4,3 कहीं यहां पे होगा और 6,2 कहीं यहां पर होगा. इन 2 पॉइंट से इलिप्स पास कर रहा है. ठीक है, सो लेट्स कुछ लिख देते हैं इसके अलावा. लेट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. और बिकॉज मेजर एक्सिस हमारे किसके अलाउंग है, एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो इसका मतलब यहाँ पे ए किससे बड़ा होगा, बी से. इतना तो श्योर है. अब इलिप्स कहां से पास कर रहा है, 4,3 एंड 6,2. सो बिकॉज इलिप्स passes through 4,3. ठीक है, सो इसका मतलब 4,3 इस इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. इसका मतलब x और y की जगह हम लोग 4,3 पुट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट इट 4 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो इट विल कम 16 बाई a स्क्वायर प्लस 9 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1. सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली ellipse passes through 6,2. ठीक है, तो अगेन सेम थिंग विल डू. सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ 6 and 2 in place of x and y in the equation. So it will come 6 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. So it will come 36 by a स्क्वायर प्लस 4 by b स्क्वायर इक्वल टू 1. सो कभी भी हमें इलिप्स का इक्वेशन लिखना होता है स्टूडेंट, तो क्या होता है, अगर हमें ए या बी मिल जाता है या हमें ए स्क्वायर या बी स्क्वायर मिल जाएगा तो हम इलिप्स का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं. तो आप देखो यहाँ पे 2 इक्वेशंस बन रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे 2 इक्वेशंस बन रहा है. ठीक है, सो हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. हमने पढ़ा है क्लास 10 में हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. ओके, सो अगर मुझे बी एलिमिनेट करना है, मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से. सो आई विल एलिमिनेट द बी. ठीक है, सो फॉर एलिमिनेटिंग बी I should equal the coefficient of the b square equal. So what I am going to do, in equation number 1 I am going to multiply by 4 and equation number 2 I am going to multiply by 9. ठीक है, so अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 64 अपॉन a स्क्वायर प्लस 36 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ये मिला 4 का मल्टीप्लाई करने पर. और इसमें अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 36 9 का कितना होता है स्टूडेंट, 9 6 54 4. 36 में अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आना चाहिए, 36 इंटू 9, 9 6 54 कैरी 5, 9 3 27, 27 5 32, 324. सो 324 बाई ए स्क्वायर प्लस, और अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो 36 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9. ठीक है, ये आ गया. अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा अगर दोनों इक्वेशंस को, सो माइनस माइनस माइनस
सो दिस टू विल बी कैंसिल्ड एंड यहां पे क्या बचेगा स्टूडेंट, यहां पे बचेगा -260 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, देख लेना -260 अपॉन ए स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, और यहां पे क्या बचेगा, यहां पे जो बचना चाहिए दैट विल बी -5। ठीक है, सो माइनस माइनस कैंसिल्ड, तो 260 इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। So a square will be equal to 260 by 5. So it will be equal to 52. इसका मतलब a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चलती है 52। ठीक है, तो जब a स्क्वायर आपको पता चल गया तो किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 में a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो और b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो फ्रॉम, क्यों नहीं मैंने a की वैल्यू निकाली स्टूडेंट, क्योंकि मैंने a की वैल्यू इस तरह निकाल ली, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसमें a स्क्वायर आता है। तो जब हमें a स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई है तो a की वैल्यू निकालने का क्या मतलब है, क्योंकि हमको केवल इक्वेशन निकालना है, हमको और चीज नहीं निकालनी है। तो इसीलिए मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू ही केवल निकाली है। तो जब ए स्क्वायर मिल जाएगा तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, कोई भी इक्वेशन कर दे सकते हैं आप। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं वैल्यू पुट करना चाहता हूं 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये हमारा इक्वेशन। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू 2 प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ इसको जब ले आते हैं हम लोग, तो 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 16 बाई 52। सो 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 52 माइनस 16 अपॉन 52। ठीक है, सो 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बाई 52। ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, दिस विल बी कैंसिल्ड। So what will come? 1 by b square is equal to 4 by 52. So जो b square की वैल्यू आएगी स्टूडेंट यहाँ पे वो आएगी 52 by 4, that is 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, b स्क्वायर की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, a स्क्वायर ऑलरेडी निकाल लिया हमने 52 और b स्क्वायर की वैल्यू 13। सो a स्क्वायर पता चल गया, b स्क्वायर पता चल गया, तो इलिप्स का इक्वेशन हम आराम से ले सकते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज, सो द इक्वेशन ऑफ द ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। पुट कर दीजिए वैल्यू। सो x square upon a square कितना है 52 एंड b square कितना है 13 इज इक्वल टू 1। इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका स्टूडेंट, यहां पे स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो उसका आंसर आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 52 इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 52, ये आएगा आंसर। ठीक है, तो चाहो तो आप ऐसे आंसर लिख दो, चाहो तो आप ऐसे आंसर लिख दो। सो बाय दैट वे वी हैव फिनिश क्वेश्चन नंबर 20। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 भी है, मतलब कि क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है। सो आई होप you are able to solve the question related to the ellipse. So by that way students, we have finished exercise 10.11.3. So in the next part of the video of this chapter, I will tell you the concept of hyperbola. This is the last coding section that we have to discuss, then we will finish this chapter. Okay, so I hope whatever things I taught you that is clear to you. Remaining thing we will discuss in the next part of the video. So till then students, have a nice day, take care, thank you.